अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने वुमेंस रिजर्वेशन बिल की मुखालिफत। बिल के जरिए ओबीसी और मुस्लिम खवातीन को धोखा दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत पर की तनकीद। 33% वुमेंस रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में पेश करने का बीआरएस ने किया खैर मकदम। खातून के लिए उनकी निशिस्त महफूज होने पर उसे छोड़ने का वजीर केटीआर ने किया ऐलान। वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से रियासत की तकसीम के सिलसिले में दिए गए बयान से अवाम को गुमराह किया जा रहा है। बीजेपी रुकन पार्लिमान डी अरविंद ने बीआरएस और कांग्रेस पर लगाया इल्ज़ाम। मजलिसी कायदीन मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी भलाई कामों में मसरूफ़। टू व्हीलर्स के सरख में मुलविस टोली का पर्दाफाश। 11 टू व्हीलर्स बरामद। मलारदेवपल्ली पुलिस की कार्रवाई। डीसीपी राजेंद्र नगर जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल की मुखालिफत की और कहा कि मज़कूरा बिल से ज़ाहिर होता है कि मरकज़ी हुकूमत मुस्लिम ख़वातीन को धोखा दे रही है। बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि मुस्लिम और ओबीसी ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, उनका हक़ छीन रही है। उन्होंने बताया कि मुस्लिम ख़वातीन की आबादी भले ही 7% है, ताहम लोकसभा में सिर्फ 0.7% नुमाइंदगी ही पाई जाती है। वाज़ेह है कि मरकज़ी वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल ने दस्तूर तरमीमी बिल पेश किया, जिसकी रो से ख़वातीन को 33% रिजर्वेशन लोकसभा और असम्बलियों में देने की बात कही गई है। ताहम मज़कूरा बिल पर अमलावारी मुल्क में होने वाली मरदमशुमारी और लोकसभा हल्कों की हदबंदी के बाद ही मुमकिन हो पाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ सवर्णा वुमेन के तनासुब ही में इजाफा करना चाहती है। किस प्रदेश में मैं इसलिए मेरा आप Sir, I thank you for giving the opportunity, sir. Sir, on behalf of my party, I stand to oppose this legislation because the justification being given for being legislation is to ensure that more women get elected in the parliament and the state assemblies. If that is the justification, why is that justification not being extended to the OBC women and to the Muslim women, sir? Where the representation in this August House is minimal, very less. Secondly, sir, we know that Muslim women are 7% of the population, but in this Lok Sabha, their representation only 0.7%. We know for a fact that the annual dropout rate of Muslim girls is almost 19%, while it is 12% for other women. Sir, nearly half of the Muslim women are illiterate. This Modi government wants increased representation for Savarna women. They don't want representation for OBC women and for Muslim women, sir. 690 women MPs have been elected till the 17th Lok Sabha, and out of this 690, only 25 have come from the Muslim community. In 57, 62, 91, 99, there has been no Muslim woman got elected. May I tell you, sir, and bring to notice of the August House, that this number has never gone beyond four members. And when I hear that no reservation cannot be given on religious grounds, what is 1950 presidential order? It is a deceive. You are deceiving the Muslim community by denying them this quota in this women reservation, sir. Muslim women face double bind discrimination against being as a woman and as a Muslim also, sir. This government does not want to live in a world where marginalized people get substantial representation. You want a parliament which consists of only bade log. You don't want people from chote log to enter in this August House, sir. This bill will deny fair share to OBCs. This bill will close the doors for the Muslim representation in the parliament and in the assembly, sir. We know for a fact, sir, with the rise of Hindu majoritarian nationalism and the formation of Hindu vote bank by BJP, the Muslim representation has gone down, it will go down further. Is this good for our country, the political isolation of Muslims? Is this good for our country? No, it is not at all good.
Is this an inclusive legislation? No, it is an exclusive legislation for those people who are already represented in August House, sir. May I bring to your notice, sir, this selective affirmation is an election stunt. And may I know that the Prime Minister is OBC. You have only 120 OBC MPs in August House. You have 232 upper caste MPs. The Prime Minister says I am an OBC, but you are not looking after your own OBCs, sir. And sir, this is your love for OBCs. 22% only OBCs in August House, sir. The government talks about Vandana. What sort of Vandana is this when Bilkis Bano rapists are released? You talk about Vandana when female workforce participation declined from 30 to 19%. What sort of Vandana is this when 63 million women are missing, disappeared? What sort of Vandana is this, sir, when 2017-22, 22 million women dropped out from workforce, leaving only 9% eligible population employed or looking for for jobs, sir. And this bill is what? This is a woman deception bill. This is a check bounce bill. This is an anti-OBC and Muslim women bill. This is a distraction bill. This is not an inclusive bill. This is an exclusive bill. And may I conclude by saying, sir, that the minorities, the Jain community, no woman MP has entered from Jain community. Can Amit Shah stand up and say, why is there a no Jain MP? Can Gujarat people stand up and say, from 1984, not a single Muslim MP has got elected from Gujarat? And in conclusion, I would say, I would blame Sardar Patel and Nehru for deceiving the minorities in the Constituent Assembly. Had they been honest, the Muslim representation would have been higher over here. That is why I oppose this bill. Thank you, sir. Yes. हैदराबाद शहर को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने के सिलसिले में वज़ीर आला KCR तेज़ी के साथ इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर IT व सनत KT रामा राव ने एक तकरीब से खिताब करते हुए ख़यालात का इजहार किया। नाज़रीन, इस खबर के साथ देखते हैं दीगर अहम खबरें। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वज़ीर KT रामा राव ने हैदराबाद में मुनक़िदा एक तक़रीब से खिताब करते हुए पार्लियामेंट में ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात के बिल पेश करने का खैर मक़दम किया। उन्होंने कहा कि BRS का दीनी मतालिबे को मरकज़ी हुकूमत ने तस्लीम करते हुए पार्लियामेंट में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पेश किया है। उन्होंने बताया कि रियासत की तश्कील के बाद 2014 में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती असम्बली में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात देने के सिलसिले में क़रारदाद मंजूर करते हुए मरकज़ को रवाना की थी। उन्होंने ये भी कहा कि BRS मुकामी दर्जात में ख़वातीन को 50% तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर रही है। वज़ीर IT व सनत KT रामा राव ने इस तक़रीब से खिताब करते हुए हैदराबाद में किए जाने वाले तरक्याती इक़दामात पर रोशनी डाली और कहा कि हैदराबाद को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने के सिलसिले में तेज़ी के साथ इक़दामात किए जा रहे हैं। I hope you enjoy Hyderabad. It's a beautiful city. It has got history, culture, heritage. There's plenty of shopping also to do, Jessica. And Jessica is the Deputy Speaker of Singapore Parliament, so I think please welcome her with a round of applause. She's also on the board. So I was just telling Jessica that Indian Parliament is debating the Women's Reservation Bill, which we of course welcome wholeheartedly, and we want to see more and more women leaders. And if I have to lose my seat for that, so be it. But the fact is, that's all right. That's all right. We all have a limited shelf life, which is fine. I think I've done my thing. But the thing is, Women's Reservation Bill, I think is an important milestone, and I'm glad you're in India witnessing it. So thank you again to the entire team of Capital Land for joining us. A testimony to what this city has in terms of a promising future. बीजेपी रुकने पार्लियामेंट D अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस और BRS कायदीन पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दिए गए रियासत की तकसीम के बयान को लेकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर का क्लिप पेश करते हुए बताया कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के इक़्तिदार में की जाने वाली रियासतों की तकसीम की बात पेश की और कहा था कि इन तीनों रियासतों में की गई तकसीम बेहतर अंदाज में दोनों रियासतों में खुशी मनाई गई, लेकिन तेलंगाना की तश्कील में ताख़ीर करने की वजह से खून खराबा हुआ, जिससे आंध्र प्रदेश में नाराज़गी देखी गई। D अरविंद ने पार्लियामेंट में ख़वातीन बिल पेश करने का खैर मक़दम करते हुए बताया, बिल को लेकर ही BRS कायदीन इसका सेहरा अपने सर बांध रहे हैं, जो काबिल मज़म्मत है। रियासती वज़ीर KT रामा राव ने आज माधापुर में कैपिटल लैंड
टेक पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में KTR ने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल का हवाला देते हुए कहा कि अगर इस बिल की वजह से उन्हें अपनी नशिस्त से महरूम होना पड़ा तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमारी एक महदूद ज़िंदगी और मैंने अपना काम किया है। इस मौके पर उन्होंने एक महाराष्ट्र के बिल्डर का हवाला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के एक बिल्डर ने उनसे ये कहा था कि हैदराबाद हिंदुस्तान के सिंगापुर का वर्जन है। Day before yesterday, in fact, we had a group of 250 builders and construction companies from Maharashtra who we hosted here in Hyderabad. And one of the things that one of the leading builders from Maharashtra told me was they went around Hyderabad for 3 days. And then he comes to me and he says, so what is happening in Hyderabad essentially is, what is being built here essentially is India's own version of Singapore. And I was so delighted because Singapore is a country that I look up to. Singapore is certainly a country that we all look up to. Singapore, Japan, these are the nations that have done tremendously well in our own, continent, Asia. And these are the countries we have so much to learn from. I have to confess, Mano, that while we were formulating our industrial policy in Telangana, we have looked at EDB, we have studied all the things that you guys have done in Singapore and have copied many aspects of it. We did not pay you for that, sorry about that. But we copied many aspects. Life is all about learning. Learning good things, picking up, imbibing the best elements of, and you also know that wise people learn from others' experience. You don't have to reinvent the wheel, you don't have to start from the scratch. So, have picked up quite a few things, and as Gauri said, I think Capital Land has been vested in Hyderabad for a very long time, and I also believe that गणेश और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पुलिस की तरफ से शहर हैदराबाद में चौकसी बढ़ती जा रही है। मंगल की रात DCP साउथ जोन साई चैतन्या की क़यादत में मोगलपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में फ्लैग मार्च किया गया। सुधा टाकी से शुरू होकर मुख्तलिफ इलाक़ों का अहाता किया गया। DCP ने बताया कि ईद व त्यौहार के मौके पर आवाम में अमन व क़ानून का एतमाद बहाल करने के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के दस्तों ने भी इस फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। आदाब, आज साउथ जोन सिटी पुलिस और हमारे साथ आ रही है रैपिड एक्शन फोर्स के साथ एक फ्लैग मार्च किया। बिलचौक PS लिमिट्स पे अभी पूरा किया, सॉरी मोगलपुरा PS लिमिट्स पे। सुधा टाकिस वगैरह से स्टार्ट होकर सुल्तान शाही, कवेली कमान और वोल्टा के होते हुए ये राजेश मेडिकल हॉल तक आया। ये अभी हमारा, हम जानते हो अभी गणेश और मिलाद का अभी त्यौहार का ईदों का समय है, तो इसके लिए सभी लोगों को, सभी आवाम को भरोसा दिलाने के लिए पुलिस से कुछ भी प्रॉब्लम है हम लोग अटेंड करते हैं, वो भरोसा दिलाने के लिए हम लोग एक फ्लैग मार्च निकाला। और आगे हम लोग शालीबंडा का एरिया पे भी घूमेंगे और ये आने वाले दिनों पे पूरा सारी साउथ जोन पुलिस स्टेशन पे सब पे फ्लैग मार्च होगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है ताकि लोगों पे कॉन्फिडेंस बढ़े कि अपने त्यौहार बिना कोई प्रॉब्लम के साथ, बिना कोई शेक के साथ लॉ के अकॉर्डिंग मनाने के लिए। थैंक यू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में अवामी फ़लाही इक़दामात और तरक़ियाती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। चुनांचे इस सिलसिले के तहत बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने डिवीज़न के इलाक़े अंसारी रोड की मुकामी अवाम से मुलाक़ात की और उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। मोहम्मद मुबीन के इस पैदल दौरे के मौके पर महकमे बल्दिया के मुतालिका ओहदेदार भी मौजूद थे, जबकि कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने अंसारी रोड के उन इलाक़े जात का भी दौरा किया जहां बल्दी और आब रसानी के कामों का आगाज़ होने वाला है। इस मौके पर मोहम्मद मुबीन ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर वक्तन फ़ौक्तन डिवीज़न का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल की जानकारी और मसाइल की यकसुई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्के बहादुरपुरे के डिवीज़न रमनसपुरा में सरकारी स्कूल्स और आंगनवाड़ी इदारों में बच्चों में जहां तालीमी किट्स फराहम किए गए, वहीं स्कूल्स में पंखे और दूसरा ज़रूरी सामान भी मुहैया किया गया। रमनसपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने मजलिसी कारकुनों और सुदूर इब्तदाई के हमरा रमनसपुरे के मुख्तलिफ इलाक़ों में वाक़ सरकारी स्कूल्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स पहुँच कर तलबा में तालीमी किट्स तकसीम किए। इसके अलावा डिवीज़न्स के स्कूल में जहाँ पंखों की ज़रूरत थी, पंखे भी फराहम किए गए। बैरिस्टर ओवैसी की जानिब से हल्के लोकसभा हैदराबाद में तालीमी इदारों में मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर को यकीनी बनाने के लिए इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। बल्ली डिवीज़न रमनसपुरे के 9 आंगनवाड़ी स्कूल्स और एक सरकारी स्कूल में मज़कूरा सामान फराहम किया गया। बाद अज़ां कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने बताया कि डिवीज़न के आंगनवाड़ी और दूसरे सरकारी स्कूल्स के बारे में सदर मजलिस को एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसके बाद रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां की सरपरस्ती में तालीमी किट्स के अलावा ज़रूरी सामान भी तकसीम किया गया। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर के हमरा मुतालिका सुदूर इब्तदाई व दीगर भी मौजूद थे। गणेश त्यौहार के सिलसिले में दोनों शहरों में भी जोश व खरोश देखा गया, जबकि कई मोहल्ले जात में मुख्तलिफ मॉडल्स की गणेश मूर्तियां बिठाई गई हैं। इस सिलसिले के तहत शीतला माता टेम्पल में चंद्रायन 3 मॉडल की गणेश मूर्ति बिठाई गई है और मुसलसल पूजा की जा रही है। टेम्पल कमेटी प्रेसिडेंट राजेश्वर राव की क़यादत में इस मंदिर और पंडाल में इंतजाम किए जाते हैं। इस मौके पर आर दीपेश राज वर्मा, टी संजय सिंह, राजेंद्र सिंह, रवि, राकेश, सुंदर, वी श्रीकांत और शंकर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। राजेश्वर राव उर्फ राजू भैया ने बताया कि हर साल गणेश त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है और अकीदतमंद पूजा में भी हिस्सा लेते हैं। मदारवेपल्ली पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरक़े में मुलविस एक टोली का पर्दाफाश किया और उनके कब्जे से 11 बाइक्स जुमला मालियती 5,95,000 रुपये बरामद किए। डीसीपी राजेंद्र नगर जोन ने मीडिया को बताया कि शिकायतें मौसूल होने पर खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए कार्रवाई की गई और इस रैकेट को बेनकाब किया गया। उन्होंने बताया कि 5 मुलज़िमीन के जुमला 3 फरारी में है, जबकि 2 को हिरासत में लिया गया है। मुलज़िमीन दोनों शहरों के कई पुलिस स्टेशन हदूद में हुई बाइक चोरी की वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। एक अखिल नाम है और एक मुजामिल है। ये 2 जनों को सस्पिशियस सर्कमस्टेंस में वो कस्टडी लिए। ये जो लोग हैं इसके पहले व्हीकल अफेंडर्स है और ये लोगों के ऊपर पुराना 19 केसेस है। अभी नया जो कन्फेशन के मुताबिक 11 केसेस डिटेक्ट हुए, 11 बाइक्स भी डिटेक्ट करे। इसमें आप देखें तो हैदराबाद में पुराना शहर की पुराना 12 केसेस है, अपना राचकोंडा की 1 है, साइबराबाद की 6 है, निज़ामाबाद की अभी नया 2 केसेस है और पूरा जुमला मिला के 40 केसेस है ये लोगों के ऊपर। अभी 3 जने शोएब और सोहेल और मोहित बोल के पकड़ने का है। ये जो 40 केसेस है ये 2 अफेंडरों को पीडी एक्ट में अंदर रखने के लिए, इसके पहले भी केस है। अभी वो प्रोफेशनली ये लोग रेगुलर अफेंडर्स है, रिपीटेड अफेंडर्स है, इसलिए वो लोगों के ऊपर
पीडी एक्ट प्लान कर रहे और पूरा जुमला मिला के अपने को 6 लाख रुपए तक वर्थ बाइक्स रिकवरी करे। ये 2 जने से अभी फिर पुलिस कस्टडी ली जाएगी। उसके बाद में बाकी जो 3 लोग हैं वो लोगों को भी अरेस्ट करने के बाद जो भी निकलता है आपके आगे बोल देंगे। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद ने हुसैन सागर और उसके आसपास के इलाकों का मुआयना किया। गणेश निमज्जन के सिलसिले में पुलिस की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने उनके साथ मौजूद ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें भी दी। एक ऐसे वक्त जबकि ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर पार्लियामेंट में मुबाहिस हो रहे हैं तो ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की बात हो रही है, लेकिन तेलंगाना के आदिलाबाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के पास आंगनबाड़ी वर्कर्स के एहतजाज के दौरान खातून सब इंस्पेक्टर के बाल खींचे गए। आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी अक़ल तरीन तनख्वाह 25,000 रुपये करने का मुतालबा कर रही थी। इस दौरान जब एहतजाजी वर्कर्स कलेक्टर ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तब पुलिस वहां पहुंच गई। इस दौरान धक्कम पेल हुई और खातून सब इंस्पेक्टर के बाल खींचकर उन्हें पीछे किया गया। इस मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। नीलोफर हॉस्पिटल से अगवा किए गए 6 माह के बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया है। वाज़ेह है कि 14 सितंबर को फरीदा बेगम अपने 4 साला बच्चे के इलाज के लिए आई थी और उनके साथ उनका 6 माह का बच्चा भी मौजूद था। और जब वो वेटिंग लॉन्ज में बैठी हुई थी तो उस वक्त एक और खातून हॉस्पिटल आई थी जहां उसका 2.5 माह का बच्चा ज़ेरे इलाज था। पुलिस के मुताबिक जब फरीदा खाने के लिए गई तब उस वक्त ममता नामी खातून के बच्चे को लेकर चली गई। पुलिस ने यह भी कहा कि ममता और सीनू के बच्चे को जो बीमारी थी उससे वो मायूस हो चुके थे और इसी वजह से ममता ने फरीदा के बेटे का अगवा किया ताकि वो इसे पाल सके। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद टीमों को तश्कील दिया था और फिर टेक्नोलॉजी के ज़रिए ममता को कामारेड्डी के बांसवाड़ा में पता लगाया गया और फिर उसे वहां से बाजियाब कराते हुए फरीदा के हवाले कर दिया गया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की टीम ने बच्चे की बाजियाबी पर अहम रोल अदा किया। फरीदा बेगम, उसका छोटा बेटा 6 महीने का बच्चा फैजल को लेके नीलोफर हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट के वास्ते फैजल बेगम और उसका रिलेटिव्स आता। उसी दिन ये फैजल बेगम वो बच्चे को दूध पिलाने के बाद वहाँ रख के ये बाजू में जाके जो खाना लाने के बाद जाता, उस टाइम में ये काटरावत ममता बल को ये बांसवाड़ा का ST कास्ट लंबाड़ा लेडी है, उन्होंने ये बच्चा को उठा के लेके जाके अबडक्शन किडनैप जैसे करके बाहर चले जाता। बाद में हमारे को फैजल बेगम फरीदा बेगम वाला कंप्लेंट लिया, हम उसका ऊपर अबडक्शन 365 IPS में केस दर्ज करिए FIR करने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके CCTV फुटेज तलाश करे पूरा। उसमें हमारे को क्लूज आए, एक लेडी लेके जा रहे थे। बाद में लांडाड़ा पुलिस नामपल्ली अभिलाष इंस्पेक्टर उसका टीम SI और टास्क फोर्स राजू नायक सेंट्रल जोन उसका टीम नवीन SI एंड स्टाफ पूरा CCTV पूरा तलाश करते करते अपने को CCTV में वेरिफिकेशन जब ये काटरावत ममता है ना, उन्होंने 2-3 बार फ़ोन इस्तेमाल करा। वो फ़ोन में अपने को इस्तेमाल करा तो वो एग्जैक्ट लोकेशन CCTV फुटेज में आया ना, वो लोकेशन में जाके लैंगिट्यूड लैटिट्यूड लेके वहाँ से हम पूरा सेल फोन का 1 by 1 एलिमिनेशन प्रोसेस में करके कॉमन 3 प्लेसेस में एक नंबर आया। वो नंबर से हम इसको पकड़े। आज सुबह 6 बजे बांसवाड़ा में जो रूम में ले गया था, एक काटरावत सीनू और काटरावत ममता दोनों को गिरफ्तार करके बच्चा को सेव करके इधर लेके आए। अभी फैजल बच्चा को उसका माँ फरीदा बेगम को अभी हम हैंड ओवर करें। एक केस में सिलसिला में जाए तो ये ममता और सीनू को 8 साल बाद शादी हुई थी। इससे पहले वो दोनों को 2 मर्द बच्चे पैदा हुआ। वो दोनों भी ये हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम को डिसीज रेयर ऑफ द रेयर डिसीज का
जिससे वो दोनों भी मर गया। बाद में अभी ये ममता को और एक बच्चा पैदा हुआ, वो भी 15 दिन का बच्चा है। वो बच्चे को ट्रीटमेंट वास्ते नीलोफर हॉस्पिटल ये महीना 14 तारीख आया। ये बच्चा भी कैसा भी, इससे पहले 2 बच्चा कैसा मर गया, वही डिसीज से ये बच्चा भी मर जाता को वो लोग कन्फर्म करने के बाद वो बच्चा को वहाँ छोड़ के बाहर आया। जब भी ये फरीदा बेगम का बच्चे को उन्होंने खाना लाने का, तो उसका बाजू बैठ के बातचीत करते करते भी ऐसे थोड़ा अटेंशन करके वो बच्चा ये ममता को देखे थोड़ा हंसी करा, उससे थोड़ा अफेक्शन हो गया। उन्होंने खाना का फरीदा बेगम जाए तो ये बच्चा को उठा कर लेके गया। मगर इधर इनोसेंट क्या है बोलते, माँ का किसी तो माँ का माँ होता। अब तीसरा जो जन्म दिया वो बच्ची एक ममता, उन्होंने भी मरने का है बोल को, ये बच्चे के लेके जाके हम पालेंगे बोल को उसको ऐसा था। बट किडनैप करना ये करना बोल को उसका इरादा नहीं है, बिल्कुल इरादा नहीं है। अब दोनों हमारा कस्टडी में लिया, सुबह जाके अभी हैंड करा। वो दोनों का बच्चा अभी जो पैदा हुआ, अभी नीलोफर हॉस्पिटल में अभी इल्जाम चल रहा, उसका ट्रीटमेंट चल रहा। उसको फर्दर का लेके अपन ये करेंगे। इसमें हमारा टास्क फोर्स टीम और लैंड टीम बहुत कोशिश करे। ऑलरेडी डॉक्टर स्वप्ना नीलोफर हॉस्पिटल में जो कंप्लेंट दिए ना, उसी दिन वो बच्चा को छोड़ के गया, माँ छोड़ के गया। बल्कि हम 317 IPS में और एक केस भी रजिस्टर करा सेम दिन में, वो भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा। साउथ जोन CCS ने सरखी की वारदात में मुलविस सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि राजन दास उसके कब्जे से 6 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि 13 और 14 सितंबर की दरमियानी शब IS सदन के पास वाक़ मोबाइल की दुकान में दाखिल होकर सरखी की वारदात अंजाम दी गई थी। पुलिस ने तहकीक़ात करते हुए सारिक को गिरफ्तार किया। राजन के 2 साथी राजू और हनुमंतु जो मसरूक़ा सामान रखा करते थे मफरूर बताए गए हैं। राजन को मज़ीद कार्रवाई के लिए मुतालिका पुलिस के हवाले किया गया। तेलंगाना यादाद्री ज़िले के मदगूर तिरुमलागिरी सड़क पर RTC बस के उलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। बाज़ मुसाफिरीन के ज़ख्मी होने की भी इत्तला मिली है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि ज़ख्मियों को भी करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया और मुतालिका पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। कुल हिंद अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एहतमाम मुख्तलिफ शुबे हयात में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले मर्द व ख़वातीन को मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवार्ड से नवाजा गया और हर साल की तरह इस साल भी ये तकरीब उर्दू घर मुगलपुरे में मुनक़्क़िद हुई। मज़कूरा तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा ग़ियासुद्दीन अजमेर शरीफ, हज़रत मौलाना सैयद महमूद हुसैनी अल रिफ़ाई सादात पीर बगदादी, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खां बंदा नवाज़ी, मौलाना इरफ़ानुल्लाह शाह नूरी, डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी, बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात, डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी के अलावा डॉक्टर मुफ्तिया हाफिज़ा रिज़वाना ज़रीन प्रिंसिपल व शेख़ुल हदीस जामिअतुल मोमिनात और डॉक्टर मुफ्तिया नाज़िमा अज़ीज़ मोमिनाती भी शरीक थे। तक़रीब का आगाज़ आयशा सिद्दीक़ा की क़िराअत और हाफिज़ा आफिया की नात शरीफ से हुआ, जबकि दीगर मेहमानान के हाथों मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवार्ड अता किए गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 30वां सालाना मरकज़ी अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवार्ड तक़रीब उर्दू घर मुगलपुरा में मुनक़्क़िद हुई है। इस तक़रीब में पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा ग़ियासुद्दीन साहब क़िबला और सादत हज़रत मौलाना सादत पीर साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत किए हैं। 51
मीलादुन्नबी अवार्ड तकसीम किए गए हैं, जिसमें उलमा, मशाइखीन, प्रोफेसर्स, वकला, डॉक्टर्स, मिली, दीनी, फलाही खिदमत अंजाम देने वालों को मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवार्ड से सरफराज किया गया है। उसके अलावा मरकज़ी अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम तहरीरी मुकाबलेजात, तकरीरी मुकाबलेजात, क़िरात और इस्लामी सीरत क्विज़ मुकाबलेजात मुनक़िद हुए, जिसमें लगभग 6000 से ज़ायद तलबा और तालिबात पूरे हिंदुस्तान से शरीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह उन इम्तिहानात में, मुकाबलेजात में कामयाब तलबा और तालिबात को आज बदस्त मेहमानान ख़ुसूसी अव्वल, दुव्वम, सुव्वम तरग़ीब आने वालों तलबा और तालिबात को इनामात और तौसीफ़नामे दिए गए हैं। मैं इस मौके पर हमारे हरकियाती शख्सियत डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वासी अहमद सूफ़ी, जनाब अहमद पाशा साहब, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा साहब, डॉक्टर अब्दुल गफ़ूर साहब और जितने हमारे रुफ़क़ा हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। माअस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुतली बौली से लगे मूसा नदी के इलाके में झोपड़ी में आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर इंजन मुकाम वाक़े पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। झोपड़ी में रखा हुआ सामान जलकर खाकस्तर हो गया। यहीं पर कार्गो बस सर्विसेज के लिए भी बसें खड़ी होती हैं, ताहम कार्गो में जाने वाला सामान महफूज रहा। रियासती वजीर व रुकन असम्बली हल्के महेश्वरम सविता इंदिरा रेड्डी ने मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग के हमरा वार्ड नंबर 3 नबील कॉलोनी जलपल्ली म्यूनसिपलिटी का तफसीली दौरा किया और मसाइल से वाकफियत हासिल की। इस कॉलोनी की आवाम ने शिकायत की थी कि पानी की सरबराही और ड्रेनेज के मसाइल पाए जाते हैं। रियासती वजीर ने मुतालिका ओहदेदारों के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी, जबकि SNDP कामों की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। इस मौके पर मुकामी काउंसलर्स और म्यूनसिपलिटी के ओहदेदार भी मौजूद थे। हल्के असम्बली महेश्वरम के नबील कॉलोनी में आया हूँ, जो कि यहाँ के मिनिस्टर इंचार्ज मिनिस्टर रंगारेड्डी और महेश्वरम MLA जनाब महेश्वरम MLA श्रीमती सविता इंदिरा रेड्डी मैडम के साथ तफसीली दौरा किया गया। इसमें थोड़ी हाफिजरों की लापरवाही की वजह से यहाँ पर आवाम को तकलीफ़ हो रही है। तफसीली 2 घंटे दौरा किया गया और मैडम भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा पूरे इन एरियो में फिरे। यहाँ का मेन चीज़ जो हाफिजरान जो SNDP के नाले का काम शुरू करे, वो FTL के लेवल देखते हुआ काम करना था। वो लोग वैसा काम नहीं करके, जो आउटलेट है FTL का वहाँ से काम नहीं करके बीच अदर 2-3 जगह खोद के छोड़ दिए, बाद जगह सिलाब डाल के छोड़ दिए 20 मीटर का 25 मीटर का। इसकी वजह से ये काम सिस्टम की वजह से नहीं होने की वजह से यहाँ पर तकलीफ़ हो रही। जिधर बोले उधर गलियों में पानी रुक जा रहा। तो इसको मैं भी सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मिनिस्टर मैडम को पूरा हम बताए और मिनिस्टर मैडम ने कहा है कि जो नाला है बॉक्स टैप उसको उसके सेम साइज़ का स्टॉर्म वाटर ड्रेन की पाइपलाइन डाली जाएगी और वो काम जल्द से जल्द होगा बोलकर बताए। और एक चीज़ भी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए आई। आज से 1 साल पहले
सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हुकूमत से नुमाइंदगी करके 3 करोड़ 20 लाख रुपए जो मंजूर करवाई थी, उस काम के लिए आज पूरा तफसीली दौरा किया गया और मैं मैडम का भी शुक्रिया अदा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मुतालिका डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मल्लेपल्ली नुमाइंदा कॉरपोरेटर ज़फ़र खान ने इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन के साथ जोनल कमिश्नर वेंकटेश धोत्रे IAS के हमरा मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया और जोनल कमिश्नर से नुमाइंदगी की कि ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। पेशी के लिए नामपल्ली कोर्ट पहुंचे एक मुलजिम ने कोर्ट इमारत से छलांग लगाकर ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, जिसे ज़ख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुतालिका पुलिस के मुताबिक मेहदीपट्टनम के साकिन मोहम्मद सलीमुद्दीन गांजा केस में मुलजिम है और वो अदालत में पेश होने की गर्ज से पहुंचे थे। शदीद ज़ख्मी हालत में मोहम्मद सलीमुद्दीन को दवाखाने उस्मानिया रुजू किया गया और आखिरी खबर मिलने तक वो ज़ेर इलाज है। इक़दाम ख़ुदकुशी की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल पाया, ताहम पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने वुमेंस रिजर्वेशन बिल की मुखालिफत। बिल के ज़रिए OBC और मुस्लिम ख़वातीन को धोखा दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत पर की तनक़ीद। 33% वुमेंस रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में पेश करने का BRS ने किया खैर मकदम। खातून के लिए उनकी निशिस्त महफूज होने पर उसे छोड़ने का वज़ीर KTR ने किया ऐलान। वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से रियासत की तक़सीम के सिलसिले में दिए गए बयान से अवाम को गुमराह किया जा रहा है। BJP रुकन पार्लिमान D अरविंद ने BRS और कांग्रेस पर लगाया इल्ज़ाम। मजलिसी क़ायदीन मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में अवामी भलाई कामों में मसरूफ़। 2 व्हीलर्स के सरक़ में मुलविस टोली का पर्दाफाश। 11 2 व्हीलर्स बरामद। मलारदेवपल्ली पुलिस की कार्रवाई। DCP राजेंद्र नगर जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ ही इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।